بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کافی عرصے سے جب سے پی ڈی ایم نے یہ تحریک شروع کی ہے تو عوام کا اس حکومت اور اس کو لانے والوں کے خلاف غصہ جو ہے وہ سڑکوں اور بازاروں میں اب نظر آنے لگا ہے، کیونکہ عوام کو زبان مل گئی ہے اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے رہنما بھی سامنے آ گئے ہیں۔ نوبت یہ ہے کہ پہلے اشارے و کنائیوں میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا تھا ان کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، صاف نام نہیں لیا جاتا تھا۔ اب ان کے خلاف بات سیدھے انداز میں ہو رہی ہے، نام لے کر ہو رہی ہے، اور ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کارروائیوں سے بعد آ جائیں، بصورت دیگر بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے ہی جمعیت العلماء اسلام کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ کہا کہ نہ چھیڑ ملنگانو، ان کا اشارہ پنڈی کی طرف ہی تھا۔ سیاستدانوں کی کردار کشی نیب کے ذریعے سے بند کی جائے اور بصورت دیگر ان اداروں کے بجائے ہمارا احتجاج محرکین کے خلاف ہو۔ لہٰذا یہ اجلاس قرار دیتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کسی بھی سطح کی کارروائی یا کردار کشی یا نیب کا نام لے کر کوئی اس طرح کردار کشی، ہم سمجھیں گے کہ یہ نیب نہیں ہے، یہ عمران نہیں ہے، یہ جے ایچ کیو راول پنڈی ہے۔ لہذا ہمارا عوامی احتجاج اگر یہ بدتمیزی اور یہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا، اور نیب کو تو ویسے بھی رسوائی مقدر میں ہے، نہیں کیا گیا، تو پھر ہم جے ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم پھر نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے اور عمران کو نہیں سمجھیں گے، ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے باجوہ صاحب اور جے ایچ کیو ہے۔ تو اس لیے میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جے ایچ کیو کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگان۔ پھر کل جاوید ہاشمی صاحب جو اس ملک میں جمہوریت کا ایک سمبل کہے جاتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے صاف لفظوں میں نام لے کر کہا اور بتایا کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے والے آپ ہیں، سیاچین آپ کی وجہ سے کیا ہے، کارگل آپ کی وجہ سے کیا ہے، اور پاکستان آج جس بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہی۔ کوئی سیاستدان ایسا کرپٹ نہیں ہے جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، جبکہ سارے کرپٹ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے اپنی افواج پاکستان کے ہاتھوں ملک ٹوٹ رہا ہے کہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے میرے سامنے ان لوگوں نے نواز شریف کے لیے عمران خان اور ان کے لوگوں نے میرے سامنے بیٹھ کے منصوبے بنائے۔ 3 سال جب میاں صاحب کو نکالا گیا ہے، اور اس سے 4 سال پہلے منصوبے بن چکے تھے کہ نواز شریف کو کیسے نکالنا ہے۔ پھر طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ بھی وہی کرے گی جو وہ کہیں گے، عمران خان بھی وہی کرے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان کو بھی کہا کہ یار وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے، وہ ایک ڈسٹرکٹ کونسل نہیں چلا سکتا، کچھ دن کے لیے یہ رکے کہ ہاں وہ واقعی نہیں چلا سکے گا۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں تو ہر قیمت پہ نکالنا ہے نواز شریف کو۔ ان کا نام بھی، اس کی بیٹی کا نام بھی، اس کے بھائی کا نام بھی، اس کے بھتیجوں، اس کو نکالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا آپ نے۔ کیوں؟ آخر کیوں کرتے ہو؟ آپ کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آ رہی تو نہ آئیں، میں کہتا ہوں آنی پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے آج کل انہوں نے پارٹیوں کو تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک سکیم ہے۔
इंडिया जो बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक स्कीम ये है जो हमारे जर्नैल कर रहे हैं, जो हमारी अस्करी क़यादत कर रही है। का तो सिर्फ यही है कि ये पार्टियों को तोड़ना मुल्क के तोड़ने के बराबर है। वो एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल एक इतनी बड़ी सियासी पार्टी बन गई है, अब एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, अब अस्करी क़यादत नहीं रही, अब सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं रही, बल्कि ये एक पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी जमात बगैर नाम रखे वो मुल्क के अंदर वजूद में आ चुकी है। तो उस सियासी जमात ने मुल्क को बुरी तरह जकड़ा हुआ है और कहते हैं हम ही मालिक हैं और इसको तस्लीम करो। तो जब मशरकी पाकिस्तान वाले थक गए, हार गए, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम इस सियासी जमात को ही ख़त्म करते हैं, अलग चले गए। अब वो सियासी जमात मगरबी पाकिस्तान पे मौजूद है। अगर आज जितने जर्नैल हमारे रिटायर शुदा हैं, जितने सर्विस कर रहे हैं, आप एक तमाम जर्नैलों की जो विरासत है, जो दौलत है, उनके बाप की बता दें, मौजूदा जनरल साहब जो सर्विंग है उसकी बता दें असासे, और उनके बेटों के असासे और बेटियों के बता दें। कोई नहीं बताएगा, जोर लगा लें, मुल्क टूट जाएगा। आसिम क्या था उसका नाम, बाजवा का जरूरत ही नहीं है कि उसके असासे आप पूछ सकें। बाजवा के असासे रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ से आज पूछ के दिखाएं। हम तो शूदर हैं, शूदरों को ये जुर्रत कैसी है कि उनके मैं नहीं कहता कम या ज़्यादा, हैरान हो जाएंगे। एक एक जनरल 10-10 अरब में पड़ेगा कम अज कम। जो रिटायर्ड जजेस हैं वो तो 15-20 अरब के अंदर एक आम जनरल पड़ेगा, अयूब खान की तरह। याह्या खान कौन था, ये परवेज मुशर्रफ कौन था, यहाँ उसके अंदर वो जो लड़ाई हुई है अभी, है नी, कारगिल, कौन था परवेज। इसी तरीके से हमारा सियाचिन गया तो सदर इस मुल्क का कौन था। तो हर एक के दौर में पाकिस्तान छोटा हुआ है, पाकिस्तान बड़ा नहीं है। ज़ियाउल हक के दौर में भी हिस्सा दिया, अयूब खान के दौर में भी ईरान ने कुछ हिस्से लिए और मशरकी पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान को तोड़ने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता, एक बड़ी सियासी जमात है जिसकी तनख्वाह आप और हम देते हैं। पख्तून मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान काकड़ ने सेनेट में खिताब करते हुए जो बातें की हैं वो भी सुनने से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोई पर्दा नहीं रखा है। आप भी सुन लें। अफगान जंग में जो इन्वॉल्व जनरल्स हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, जो उस वक्त के इंटेलिजेंस अदारों के लोग थे, अफगान जंग में इन्वॉल्व थे जनाब चेयरमैन साहब, जिसमें ज़ियाउल हक, अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल हमीद गुल, कर्नल हिमाम और दूसरे जो थे, इन लोगों का इस्तिसाब आमदन से ज़्यादा आमदनी जो है ले आए। ये करप्स में जो है डॉलर्स में होंगे, करप्ट डॉलर्स में। जनाब चेयरमैन साहब, वार जोन जो इस मुल्क के अंदर हैं, फाटा बलूचिस्तान जो वार जोन है, इसमें जिसने भी हमारे फौजियों ने, रिटायर्ड फौजियों ने ड्यूटी की है, उसका आमदन से ज़्यादा असासों का यहाँ पर एक लिस्ट ले हैं। आप हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। और इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब,
जो जजेस रिटायर्ड हो चुके हैं, जिसका मैं एक मिसाल दूंगा, जो साकिब निसार जैसा आइन से जिसने गद्दारी की है, उसका हमें कोई हिसाब दे दे ज़ायदा असासों से, ये सारे मुल्क जो हैरान रह जाएंगे कि इस जज ने और इसकी तरह दूसरे बार जजों ने क्या क्या करप्शन नहीं की। जनाब चेयरमैन साहब, जो जनरल मुशर्रफ जिसने जो करप्शन किया है, कोई तो ये जुरत कर ले कि उसके आमदन से ज्यादा असासों के। मैं एक मिसाल अभी दूंगा, जो मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे उसके पीछे जो एडवाइजर बैठा था, अगर आप इसके असासों को नोट कर ले आप हैरान रह जाओगे। शहजाद अकबर में नाम भी लूंगा। कल मौलाना फजलुर रहमान ने एपीडीएम के सरबराही इजलास हुआ था, उसके बाद एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबके साथ। उसमें उन्होंने क्या कहा और क्या लाएमल इख्तियार किया, आप जरा देखें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख़ का तयन ऐलान करेगी, और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फ़ैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं, और हमारी तनक़ीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा, और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फ़ैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमने सिर्फ़ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाज़ेह करना है कि तमाम ख़राबियों की असल जड़ कौन है और क्यों है। इन तमाम बातों के बाद मेरा ख्याल है आप लोगों की समझ में ये बात आ गई हो कि हालात किस नहज पर जा रहे हैं। 70 साल से मुल्क के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अब सियासतदान उसको मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अब या अपने पीछे हटना है और या फिर अवाम का सड़कों पर मुकाबला करना है, क्योंकि मौलाना ने कह दिया कि अभी हमने ये डिसाइड करना है कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाएगा या पिंडी, और इसमें तमाम खतरात पोशीदा हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से भी आगाह किया कीजिए ताकि हमें मालूम हो कि आप हमारे प्रोग्राम को कैसे देख रहे हैं। अब मुझे इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।